Hey, what's up guys? Welcome back to the next video. So in this video we are going to discuss about interface. So in our previous video we have discussed about method overloading and method overriding. So this is the 21st part guys, and I have covered from basics, that is from James Gosling, who discovered Java, from variables, tokens and data types. I have started from that and we are here up to interface, and after that I am going to discuss about the advanced concept, that is JDBC, and also we'll cover framework. So make sure that you watch the playlist completely. So in future if you are seeing, then the playlist may contain all the contents which I just told, so please check it out guys, so you will get everything. Fine. So in today's topic is guys interface. So basically what is interface and how to implement the interface in Java, why we need interface, so all those things, and with practical exams as usual. I'll be showing you 2-3 programs which I'm going to implement with the help of interface. So watch this video completely. Fine guys. So let me just first discuss about the definition of interface. But before going to interface, why we need to study interface? Fine. So see here guys, whenever you are writing any program in industry or else in any real world example, if you take, so for example you want to build I mean you want to write a application which is used to for designing a automatic car. So you know that you will be having different models, right? So automatic car means it will be having some gear system mechanism, then engine systems will be there, after that lights will be there, then again electronics, different types of electronics will be there to maintain the communication, to maintain the communication between different things. There will be having a lot of programs and softwares installed inside the that car system, right? So if you take, but now whenever you are initially trying to write an application or trying to create an application, you will not be knowing how to do it. Fine, you know, right? I need this and this, but you don't know what actually it is there inside that one and how I'm going to do that one. So interface is nothing but guys incomplete methods or incomplete modules will be called as interfaces. So interface should come to mind whenever you are initially taking the input from the client. For example, take another example. You go to a client and you ask, what is your requirement? And he will say, I want this methods in my software, and this should be dashboard, and after that there should be a calling button. After that there should be a user dashboard where our users will be showing, and after that different kinds of specifications will be there, like I want to see these data I want to mention on the front page. Okay, so you just note it down all those things and create an interface of all those things. That means I want to perform that particular task A, but right now I don't know how to do that one, right? So in that case, you have to declare it as interface. After that, we know that interface. I'll tell you what interface contains and how we are going to modify that one. So we are going to use inheritance and overriding, all those things. Fine. So whenever interface comes to your mind, it is just incomplete method. It should be in your mind as well. Fine. So let me just see the definition first, guys. So interface is a Java type definition which has to be declared. So it should be P here. It should to be declared using interface keyword. Fine. So in other words, interface is a medium between two systems where one system will behave as client and another system will behave as object with services or resources. So whatever examples I have told, they are just for your understanding, guys. And actually, if somebody asks in interview what is interface, then you should give this answer, that is, in interface we'll be having two medium. It's a interface, or else I can say that it's a connection between two systems where one system will be acting as a client and another system will be acting as a object with resources. Fine. So this is a definition. Fine. So come to the syntax, guys. You can see over here. So this is fairly a simple syntax, right? So interface, and after that we need to give one interface name here. Fine. So after that open brace and open curly brace, after that close curly brace, and whatever implementation you want to do, you should be doing in this two curly braces itself. So that is as usual. So for any thing in Java we have got the same, like if you are declaring a class name, if you are declaring interface,
then interface, and after that interface name should be given. Fine. So interface can allow variables, but they are automatically public, static and final. So these are the interview questions, guys, and very important, so these type of questions, these type of tricky questions they will ask for sure. So here interface can contain variables, fine, but those variables will be automatically, or in the sense I can say JVM automatically gives them access, like they should be public. After that they will be static and final. So why they are public? Because interface is an incomplete method. We need to inherit the methods inside. So interface only supports abstract methods, guys, right? So interface can allow only abstract methods, and they are automatically public and abstract. So we have discussed in previous video what is interface and what is abstract method and what is concrete method. तो यहाँ पे कि पब्लिक, स्टैटिक एंड फाइनल होने चाहिए जो भी वेरिएबल्स होते हैं इंटरफेस के अंदर, ठीक है। तो पब्लिक का मतलब क्या होता है गाइस, उसको हम कहीं पे भी इसको इनहेरिट करके चेंज कर सकते हैं। उसके बाद स्टैटिक होना चाहिए, क्योंकि हम इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, कंस्ट्रक्टर नहीं होता इंटरफेस के लिए, तो इसके लिए स्टैटिक होना ज़रूरी है, क्योंकि इंटरफेस के नाम से हम उसको एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद फाइनल होना चाहिए, क्योंकि हम उसको चेंज नहीं करने देंगे कहीं पे भी। तो फाइनल एक वेरिएबल अगर फाइनल है, फाइनल a = 10 अगर मैं लिख दूंगा तो मैं a की वैल्यू जो 10 असाइन हुई है उसको मैं कभी चेंज नहीं कर पाऊंगा। तो इसका होता है फाइनल का मीनिंग, ठीक है। तो जब भी आप इंटरफेस का सोचें तब फाइनल होता है उसका वेरिएबल, स्टैटिक होता है और पब्लिक होता है। तो इसी तरह से इंटरफेस के अंदर सिर्फ अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं गाइज, और अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हमें पता है जिसका कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं, सिर्फ उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है, ठीक है। उसकी कोई बॉडी नहीं रहती, सिर्फ उसका हेड रहता है, तो उसको हम अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स बोलते हैं। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया है, राइट। एंड दे आर ऑटोमेटिकली पब्लिक एंड अब्स्ट्रैक्ट। तो इनका भी पब्लिक होना ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को हम इनहेरिट करेंगे एक्सटेंड्स या फिर इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड की मदद से, और उसके बाद उसको ओवरराइड कर देंगे। ओवरराइड इन द सेंस उसका इम्प्लीमेंटेशन चेंज करेंगे। तो वही इम्पॉर्टेंट जो मेथड है उसको हम परफॉर्म करते हैं गाइस इंटरफेस पे, ओवरराइडिंग, बट तो उसके बाद देखिए अ क्लास कैन अचीव ईज अ रिलेशनशिप विद एन इंटरफेस यूजिंग इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए गाइस एक क्लास है, ठीक है। तो एक क्लास को दूसरे क्लास में अगर आप इनहेरिट करना चाहते हैं तो आपको क्या यूज़ करना होगा, एक्सटेंड्स कीवर्ड हम यूज़ करते थे, EXTENDS, ठीक है। एक्सटेंड्स कीवर्ड को हम यूज़ करते हैं, लेकिन अगर एक क्लास में इंटरफेस को अगर हम इनहेरिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्लास में ये जो इंटरफेस है, इंटरफेस आई, इसको मैं इसमें क्लास में इनहेरिट कर सकता हूँ, लेकिन इंटरफेस के अंदर क्लास इनहेरिट नहीं हो सकता, क्योंकि इनकम्प्लीट होता है इंटरफेस। इंटरफेस में कोई कंस्ट्रक्टर नहीं होता है और वहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता है, सिर्फ वहाँ पे डिक्लेरेशन होता है, ठीक है। तो क्लास में मैं इंटरफेस को इनहेरिट कर सकता हूँ, ना कि इंटरफेस में मैं क्लास को इनहेरिट कर नहीं सकता। फाइन, तो अच्छे से समझ लीजिए इसको, राइट। तो उसके बाद देखिए इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड जो है इसको यूज़ करना पड़ता है। एक क्लास में दूसरे क्लास को अगर इनहेरिट करना है तो एक्सटेंड्स यूज़ करेंगे। एक क्लास में दूसरा इंटरफेस अगर हम इनहेरिट करना चाहते हैं तो इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड को यहाँ पे हमें यूज़ करना होता है। गॉट इट। सो दिस इज़ द डिफरेंस गाइस, राइट। सो उसके बाद मैंने एक छोटा सा टेबल बनाया है गाइस, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि कौन से चीज़ों को कहाँ पे यूज़ करना है। तो जस्ट लेट मी जस्ट शो दैट वन ओवर हियर, ठीक है। तो थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ओके। तो ईज अ रिलेशनशिप मतलब इनहेरिटेंस, और यहाँ पे देखिए क्लास है, क्लास और क्लास के बीच में अगर इनहेरिट करना है, एक क्लास को दूसरे क्लास में इनहेरिट करना है तो मुझे एक्सटेंड्स कीवर्ड को यूज़ करना होगा। एक क्लास में दूसरे इंटरफेस को अगर मैं इनहेरिट करना चाहता हूँ तो इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड को यूज़ करना होगा। अगर कोई इंटरफेस में क्लास को इनहेरिट करना चाहता हूँ तो नॉट एप्लीकेबल, यानी कि यहाँ पे सपोर्टेड नहीं है, ये हो नहीं सकता, क्योंकि इंटरफेस के अंदर मैं किसी क्लास को इनहेरिट नहीं कर सकता, क्योंकि इंटरफेस खुद ही एक आधा कह सकता हूँ मैं, आधा इम्प्लीमेंटेड एक मेथड हो कह सकते हैं उसको, ठीक है। तो इंटरफेस में कोई कंप्लीट या फिर कॉन्क्रीट क्लास नहीं होता, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये नॉट अलाउड, ठीक है। तो उसके बाद इंटरफेस टू इंटरफेस,
क्या मैं एक इंटरफेस में दूसरे इंटरफेस को इनहेरिट कर सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हैं। एक इंटरफेस में दूसरे इंटरफेस को आप इनहेरिट करेंगे तो वहाँ पे आपको एक दूसरा कीवर्ड यूज़ करना होगा, उसका नाम है एक्सटेंड्स। और ये ई जो है हम कैपिटल में नहीं स्मॉल में लिखेंगे, जब हम प्रोग्राम लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। फाइन, तो यहाँ पे देखिए क्लास और क्लास के बीच में क्या यूज़ करना है? एक्सटेंड्स यूज़ करना है। क्लास और इंटरफेस के बीच में इम्प्लीमेंट्स। तो बेसिकली ये जान लीजिए गाइज, अगर सेम टाइप है तो एक्सटेंड्स यूज़ होगा, ठीक है। तो इंटरफेस इंटरफेस यहाँ पे भी इंटरफेस है और यहाँ पे भी इंटरफेस है, तो सेम है तो एक्सटेंड्स होगा, लेकिन क्लास है और इंटरफेस है मतलब डिफरेंट है तो इम्प्लीमेंट्स यूज़ होगा। सिर्फ इतना जान लो, आपको पता चल जाएगा। सेम, एक्सटेंड्स, डिफरेंट, इम्प्लीमेंट्स। फाइन, तो दिस इज अबाउट दिस चार्ट गाइज। थोड़ा सा यहाँ पे ये जान लो, उसके बाद और थोड़ी सी थ्योरी हम देख लेते हैं और उसके बाद डायरेक्टली हम देखेंगे एग्जाम्पल्स, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। फाइन, तो ये जो पॉइंट देखिए यहाँ पे, if a class implements an interface we have to either override the abstract method or make the class as abstract, that is we have to satisfy the contract of abstract। तो इस चीज़ को हमने पढ़ा था कि जब भी कोई इंटरफेस एक क्लास को, अगर एक क्लास में कोई इंटरफेस को हम इनहेरिट करते हैं तो उसके बाद हमें दो चीज़ें यहाँ पे सेटिस्फाई करनी होगी। या तो जो जिस क्लास में भी आप इंटरफेस को इनहेरिट कर रहे हैं उस क्लास को अब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दो, अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिख दो उस क्लास के नेम के पीछे। या फिर दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं कि जो भी आप अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं इंटरफेस के अंदर उनको ओवरराइड कर दो। अगर उनको आप ओवरराइड करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अब्स्ट्रैक्ट यहाँ पे मतलब मेल खा जाएगा, ठीक है। तो दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो क्लास को अब्स्ट्रैक्ट कर दो या फिर मेथड्स को, यानी अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को ओवरराइड कर दो, ठीक है। तो आप यहाँ पे जनरली क्लास को अब्स्ट्रैक्ट नहीं किया जाता गाइज, जो भी मेथड्स होते हैं उनको ओवरराइड ही किया जाता है। लिखते ही हम इंटरफेस इसलिए कि ताकि जब भी ज़रूरत पड़े तब उन मेथड्स को लेकर हम ओवरराइड कर सके। तो दूसरा पॉइंट जो है यही फॉलो किया जाता है 100%, 99.99 कह दो, ठीक है। तो दैट्स इट। एंड नेक्स्ट, while overriding the method the access modifier should be same or higher level। तो ये इंपॉर्टेंट है गाइज। यहाँ पे क्या होता है कि जो भी इंटरफेस में हम एक्सेस देते हैं अपने क्लास को, मान लो वहाँ पे पब्लिक है, तो उसका जब हम ओवरराइड करते हैं, यहाँ पे जो भी इनहेरिट करते हैं क्लास में उसमें ओवरराइडिंग करेंगे। तो जब ओवरराइड कर रहे होते हैं तब उसका हम एक्सेस स्पेसिफायर डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकते, प्रोटेक्टेड नहीं रख सकते, या फिर प्राइवेट भी नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि वो सेम होना चाहिए या फिर हायर लेवल। अब पब्लिक से तो ज़्यादा हायर कोई नहीं है, पब्लिक है तो पब्लिक ही रहेगा। डिफ़ॉल्ट है तो वो डिफ़ॉल्ट रहना चाहिए या फिर पब्लिक होना चाहिए। प्रोटेक्टेड है तो प्रोटेक्टेड रहना चाहिए या फिर डिफ़ॉल्ट रहना चाहिए या फिर पब्लिक रहना चाहिए। प्राइवेट है तो प्राइवेट रहेगा या फिर पब्लिक रहेगा या फिर प्रोटेक्टेड रहेगा या फिर जो कि डिफ़ॉल्ट था जो वो भी रह सकता है। इन द सेंस उसको जो भी इंटरफेस में सिक्योरिटी थी उससे कम सिक्योरिटी होनी चाहिए या फिर सेम सिक्योरिटी नेक्स्ट लेवल में होनी चाहिए जहाँ भी हम इनहेरिट कर रहे हैं। जो हम एग्जांपल्स देखेंगे ये सब कुछ आपको क्लियर होगा, सो डोंट वरी। फाइन, सो उसके बाद देखिए और थोड़े से पॉइंट्स हैं। इन जावा वी कैन क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ concrete class but we cannot create an object of abstract class and interface। इनफैक्ट इन चीज़ों को मैं एक एग्जांपल लेने के बाद बताता हूँ गाइज, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलता हूँ मैं अपने यहाँ पे मैंने एक्लिप्स ऑलरेडी ओपन करके रखा है गाइज, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मैंने फोल्डर बनाया हुआ है जिसका नाम है इंटरफेस प्रोग्राम्स, ठीक है। तो इस पर जाता हूँ और यहाँ पे मैं एक क्लास बना लेता हूँ, राइट। सो न्यू हम गए और उसके बाद क्लास बना लिया। सेम यहाँ पे यहीं पे बनेगा गाइस, और नेम इसका मैं लूँगा लेट अस से कुछ भी हम यहाँ पे नेम ले सकते हैं। फाइन, सो मैं एक एम्प्लॉय कह के ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसका नेम ले लेता हूँ एम्प्लॉय, और सेम पैकेज में रहेगा। और यस, तो इसको मैं इसको इंटरफेस बनाना है तो गाइज आपको यहाँ पे भी मेथड मिल जाता है, लेकिन फाइन तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। जस्ट मैं इतना ही क्रिएट करता हूँ पहले। फाइन, तो उसके बाद यहाँ पे मैंने इसको जूम इन कर देना है थोड़ा सा। तो पैकेज इंटरफेस प्रोग्राम्स आ गया, उसके बाद क्लास एम्प्लॉय आ गया, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं क्लास की जगह इंटरफेस लिख दूंगा तो ये इंटरफेस हो जाएगा। तो इसको हटा कर मैं इंटरफेस लिख देता हूँ, ठीक है। तो देखिए ये इंटरफेस हो गया गाइस। अब इंटरफेस लिखेंगे तो ये एम्प्लॉय क्या हो गया, पहले क्लास था इसको मैंने अभी इंटरफेस बना दिया। इंटरफेस कीवर्ड मैंने यहाँ पे लिखा है। तो मैंने एक इंटरफेस क्रिएट किया जिसका नाम है
एम्प्लॉय, ठीक है। तो इसमें एम्प्लॉय होगा तो एम्प्लॉय की एक आईडी होगी, लेटेस्ट से 101 उसकी आईडी है, ठीक है। तो उसके बाद और यहाँ पे एक मेथड लिख देता हूँ एम्प्लॉय के लिए, उसका रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं है, कुछ भी रिटर्न नहीं करता, सिर्फ एक मेथड है गाइस। लेट मी जस्ट क्रिएट, सिंपल, फाइन। तो यहाँ पे मैंने एक मेथड क्रिएट किया जिसका नाम है वर्क, और यहाँ पे ये जो मैं इसको क्यों बता रहा हूँ, ये जो इंट id इक्वल टू 101 है, ये डिफ़ॉल्ट क्या होगा, इसका डिफ़ॉल्ट एक्सेस जो होगा पब्लिक होगा। जब भी आप यहाँ पे कुछ नहीं लिखते एक्सेस, तो हमने पढ़ा है कि डिफ़ॉल्ट होता है, वो जब भी आप क्लास में लिखेंगे तब ये डिफ़ॉल्ट एक्सेस होता है, लेकिन जब भी हम इंटरफेस में लिखेंगे तो ये जो id है ये पब्लिक है। उसके बाद क्या है गाइस, ये स्टैटिक भी है, तो ये स्टैटिक है, और उसके बाद ये जो वेरिएबल है फाइनल भी है, राइट। तो यहाँ पे ये चीज़ हो गया वेरिएबल के मदद से। अब उसके बाद ये जो वर्क होता है, ये जो मेथड है, इसका कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। जनरली हम क्या लिखते हैं गाइस, ऐसा लिखने के बाद हम यहाँ पे 2 ब्रेसेस लिखकर कुछ इम्प्लीमेंटेशन हम यहाँ पे लिखते हैं, ऐसे सब कुछ भी हम लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स डू नॉट स्पेसिफाई अ बॉडी, ये एक्लिप्स ही बता रहा है कि जो भी आप अब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है आपका, उसमें कोई बॉडी नहीं होना चाहिए, आप बॉडी नहीं लिख सकते इसके लिए। तो इसके चलते ये जो बॉडी मैंने यहाँ पे लिखा था, इसको अगर मैं डिलीट कर दूंगा तो आप देखिए एरर भी चला जाता है गाइस, और यहाँ पे इसको मैं टर्मिनेट कर देता हूँ, राइट। तो अब्स्ट्रैक्ट मेथड जो है ये वर्क मेथड है, ठीक है। तो इसमें कोई बॉडी नहीं होगी, सिर्फ एक डिक्लेरेशन होगा, राइट। तो ये क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट ये पब्लिक होता है और उसके बाद अब्स्ट्रैक्ट होता है, राइट। तो बेसिकली इतना होगा इंटरफेस के अंदर। अब उसके बाद क्या है गाइस, इसके बाद और एक क्लास बना लेता हूँ। लेट अस से मैं एक क्लास बनाता हूँ जिसका नाम कुछ भी दे सकता हूँ यार, जेरी ले लेता हूँ, ठीक है। तो क्लास जेरी, और जब भी मैं इंटरफेस को एक क्लास में इनहेरिट करना चाहता हूँ तो हमने डिस्कस किया था कि किसको यूज़ करना है गाइस। यहाँ पे देख के आप बता सकते हैं, एक क्लास में एक इंटरफेस को मैं इनहेरिट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे कौन सा यूज़ करना होगा मुझे, इम्प्लीमेंट्स, यस। तो यहाँ पे देखिए जेरी एक क्लास है और एम्प्लॉय एक इंटरफेस है, तो उसको मुझे एम्प्लॉय को जेरी में इनहेरिट करना है, तो डिफरेंट है तो इम्प्लीमेंट्स होगा। तो यहाँ पे मुझे लिखना है इम्प्लीमेंट्स, ठीक है। तो इम्प्लीमेंट्स, और यहाँ पे जो भी क्लास का नाम था, लाइक एम्प्लॉय मैंने लिया था, ठीक है। तो ऊपर के नाम को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और ओपन क्लोज पैरेंथेसिस। तो इस यहाँ पे क्या होगा, ये जो इंट id इक्वल टू 101 है और ये वाइड वर्क इक्वल टू 1 वाइड वर्क है, ये दोनों यहाँ पे कॉपी हो जाएंगे, यानी कि इनहेरिट हो जाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एरर दिखा रहा है गाइस, ठीक है। तो एरर इसलिए दिखा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अब्स्ट्रैक्ट को हमें यहाँ पे सेटिस्फाई करना होगा। तो हमने एक इंटरफेस को यहाँ पे इनहेरिट किया है, तो एक चीज़ मैं क्या कर सकता हूँ कि इसको मैं अब्स्ट्रैक्ट लिख देता हूँ, ABSTRACT। अब्स्ट्रैक्ट अगर लिखूंगा तो ये जो एरर है ये चला जाएगा, क्योंकि एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास अगर मैं इंटरफेस करने के बाद यहाँ पे इनहेरिट करने के बाद अब्स्ट्रैक्ट लिखूंगा तो ये चला जाता है। लेकिन मैं इसको अब्स्ट्रैक्ट नहीं लिखना चाहता, इसको मैं डिलीट करूंगा। अब दूसरा ऑप्शन क्या बचता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि जो भी उसके अंदर ये जो अब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है उसको हमें ओवरराइड करना होगा। तो ओवरराइड करूँगा यहाँ पे मैं, तो यहाँ पे सिर्फ एक यूज़र को कन्वीनियंट होने के लिए हम एनोटेशन का यूज़ करते हैं। एनोटेशन ओवरराइड हम लिखते हैं यहाँ पे, इससे पता चलता है कि यहाँ पे ओवरराइडिंग हो चुकी है, ठीक है। ओके, उसके बाद यहाँ पे फाइन, यहाँ पे क्या हुआ गाइस, ओके फाइन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो भी इसका एक्सेस है ये सेम होना चाहिए या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो बेसिकली क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं पब्लिक लिखूंगा। अगर मैं कुछ नहीं लिखता हूँ तो यहाँ पे आपको एरर दिखाई देगा, पहले मैं उसको दिखा देता हूँ। अगर यहाँ पे मैं उसको ओवरराइड, मेथड ओवरराइडिंग कैसे किया जाता है, सेम डिक्लेरेशन यहाँ पे हमें सेम रखना है, लेकिन उसका बॉडी चेंज करना होगा। तो सिस आउट, और यहाँ पे मैं कुछ चेंजेस करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ जेरी इज़ वर्किंग, ठीक है। तो कुछ इस तरह से लिख देता हूँ। अब इतना लिखने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एरर है, ठीक है। तो एरर क्यों दिखाई दे रहा है गाइस, बेसिकली देखिए यहाँ पे क्या था, ये पब्लिक है। इंटरफेस में जब होगा इसका एक्सेस कितना होगा, पब्लिक होगा। लेकिन जब हम किसी मेथड को क्लास में कोई भी
मतलब एक्सेस नहीं देते तो डिफ़ॉल्ट होता है, और यहाँ पे हमको पता है कि डिफ़ॉल्ट का एक्सेस जो है पब्लिक से कम है। इन द सेंस इसका जो है पब्लिक से डिफ़ॉल्ट को जो एक्सेस है कम हो चुका है, लेकिन यहाँ पे तो लिखा था कि हम सेम या फिर हायर लेवल ऑफ विजिबिलिटी होनी चाहिए, तो सेम होनी चाहिए या फिर हायर। तो पब्लिक से ज़्यादा तो हमारे पास कुछ है भी नहीं, तो हम पब्लिक रख सकते हैं यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे इसके पीछे पब्लिक लिखना होगा गाइस। तो यहाँ पे अगर मैं पब्लिक लिखूँगा तो ये देख सकते हैं कि आप ये चला गया, राइट। तो यहाँ पे एक एनोटेशन क्रिएट कर देता हूँ चलो। और यहाँ पे ये जो एरर यहाँ पे ओवरराइड पे दिखाई दे रहा है गाइस, बेसिकली यहाँ पे हमने कैपिटल ओ लिखना है। तो यहाँ पे अगर मैं कैपिटल ओ डाल दूंगा तो ओवरराइड ठीक हो जाएगा। तो बेसिकली ये एग्जीक्यूट नहीं होता गाइस, जस्ट यूज़र के अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है। मतलब ये मैं बता रहा हूँ कि जो भी ये वाइड वर्क करके मेथड है, ये जो वर्क मेथड है इसको मैं यहाँ पे ओवरराइड कर रहा हूँ जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो राइट, अब इसके बाद क्या कर देता हूँ गाइस, यहाँ पे मैं मेन मेथड को ले लेता हूँ। तो मेन मेथड कैसा हम लिखेंगे, जस्ट हम यहाँ पे मेन लिखकर कंट्रोल स्पेस अगर लिखेंगे गाइस तो यहाँ पे मेन मेथड आ जाता है बना बनाया हुआ। तो एक्लिप्स में बहुत ही अच्छा है गाइस, इजीली हम लिख सकते हैं। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स सब कुछ आ गया, ओके फाइन। तो इसके अंदर मैं एक क्या कर सकता हूँ गाइस, बेसिकली एम्प्लॉय की जो आईडी है उसको मैं यहाँ पे प्रिंट करना चाहता हूँ। तो क्या लिख सकता हूँ, सिस आउट system.out.println, और इसमें क्या लिखूँगा मैं, यहाँ पे लिखूँगा लाइक आईडी और उसके बाद सम स्पेस और कूलन। तो आईडी यहाँ पे मैं चाहता हूँ और इसको कॉन्कैटिनेट करूँगा गाइस employee.id से। तो क्लास का नाम क्या है, एम्प्लॉय, और यहाँ पे मैं आईडी को एक्सेस करना चाहता हूँ। तो बेसिकली employee.id अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो आप देख सकते हैं एक्सेस कर सकता हूँ मैं। यहाँ पे ये जो इंटरफेस है इसके अंदर के आईडी को मैं यहाँ पे प्रिंट कर सकता हूँ, ठीक है। तो इंटरफेस को बेसिकली जैसे हम स्टैटिक क्लासेस को कॉल करते हैं, क्लास का नेम, उसके बाद जो भी वेरिएबल या फिर मेथड होता है उसका नाम लिखते हैं। इन द सेम वे इंटरफेस का नाम, डॉट ऑपरेटर, उसके बाद जो भी वेरिएबल आपको यहाँ पे लेना है उसको आप ले सकते हैं, फाइन। तो ये हो गई बात आईडी को कैसे एक्सेस करेंगे। अब उसके बाद मैं ये जो वर्क मेथड है इसको एक्सेस करना चाहता हूँ। तो बेसिकली ये जो है इंस्टेंस क्लास है जो कि मैंने जेरी के नाम से बनाई है। अगर क्लास इंस्टेंस है तो हम सबको पता है कि उसका हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। तो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट किया जाता है, सेम क्लास नेम, तो जेरी इसका क्लास है और एक रेफरेंस वेरिएबल लेटर से जे ले लेता हूँ, और उसके बाद कंस्ट्रक्टर मुझे लिखना होगा न्यू जेरी कह के और ओपन क्लोज पैरेंथेसिस। तो मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया और उसका रेफरेंस जे में स्टोर कर दिया है। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर के वाइड वर्क मेथड को मुझे यहाँ पे कॉल करना है, फिर वर्क मेथड को। तो मैं लिखूँगा j.work अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ तो इसके अंदर का जो भी वर्क मेथड होता है उसको ये कॉल कर देगा गाइस, फाइन। तो यहाँ पे इसको सेव करेंगे और यहाँ पे हम इसको रन कर देंगे, फाइन। तो यस, इट इज़ रनिंग गाइस। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंप्यूटर अपना स्लो है और यहाँ पे कभी कभी मतलब थोड़ा सा लोडिंग ले लेता है, फाइन। ओके, तो ये टॉम कैट सर्वर जो है ओपन हो रहा है। हाँ नहीं, इसको ओपन नहीं होना था गाइस। तो मैं यस रन एज, 1 सेकेंड गाइस, मैं इसको रिजॉल्व करता हूँ। कंसोल पे जाना होगा मुझे। फाइन गाइज, तो मैंने उसको फिक्स कर दिया है अभी। जस्ट द प्रॉब्लम वाज लाइक यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जो है स्प्रिंग के जो प्रोग्राम्स है उसको मैंने बनाया था। तो बेसिकली वो रन हो रहे थे, और स्प्रिंग को जब भी हम रन करते हैं तो वहाँ पे आपको पता है कि टॉम कैट अपाचे सर्वर जो है रन होना स्टार्ट हो जाते हैं। बेसिकली आपको जब भी हम स्प्रिंग्स का वर्क कर रहे होंगे तब आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा उसके बारे में, बट फिलहाल के लिए आप देख सकते हैं जैसे कि मैं आईडी चाहता था यहाँ पे प्रिंट करने के लिए और ये आईडी आपको मिल रहा है। उसके बाद जेरी इज़ वर्किंग जो मेथड था वहाँ पे जो हमने सिस आउट लिखा था
वो यहाँ पे दिख रहा है। तो इन द सेंस आपको ये समझ लेना है कि जो भी इंटरफेस होता है उसको हमें पहले कहीं पे जो है इनहेरिट करना होगा, उसके बाद जो भी उसके अंदर मेथड होता है उसको जस्ट ओवरराइड करना है, और उसके बाद आराम से हम इंटरफेस की मदद से ही उसके वेरिएबल्स को यहाँ पे ले सकते हैं और उसको कुछ मतलब जो भी होता है उसको यहाँ पे ओवरराइड कर देंगे, या फिर क्लास को अगर अब्स्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। फाइन, तो दिस इज अबाउट वन एग्जांपल। अब उसके बाद थोड़े से नोट पॉइंट्स देख लेते हैं गाइस, और नेक्स्ट एग्जांपल की तौर हम देख लेंगे। फाइन, तो देखिए नोट पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से समझ लो। ओके, सो इन जावा we can create an object of concrete classes but we cannot create an object of abstract class and interface. Fine guys, यहाँ पे देखिए जावा में क्या होता है कि कॉन्क्रीट क्लास का ही ऑब्जेक्ट बनेगा, दूसरों का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। तो ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है गाइस, एक एंटिटी और उसके सम प्रॉपर्टीज या फिर बिहेवियर होता है। अब अब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस दोनों के अंदर ही क्या होता है कि मेथड जो है इनकम्प्लीट होते हैं। अब्स्ट्रैक्ट क्लास इन द सेंस उसमें अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होंगे, और अब्स्ट्रैक्ट मेथड जो है उसमें वेरिएबल्स नहीं होते, सिर्फ मेथड का नाम होता है। अगर वेरिएबल्स नहीं है, प्रॉपर्टीज नहीं है, तो इनिशियलाइज किसे किया जाता है? बेसिकली हम ऑब्जेक्ट क्रिएशन मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम कंस्ट्रक्टर रन होगा, कंस्ट्रक्टर जो भी वेरिएबल्स या फिर मेथड्स होते हैं उनको इनिशियलाइज कर देता है। तो उसके अंदर वेरिएबल्स ही नहीं होंगे तो वो मतलब कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं होता। अगर कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं होगा तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी नहीं बनेगा। तो सिर्फ जावा में एक ही चीज़ का कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट बनता है जो कि है कॉन्क्रीट क्लास। जो भी हम क्लास लिखते हैं उसे हम कॉन्क्रीट क्लास ही बोलते हैं गाइस। कॉन्क्रीट क्लास इन द सेंस यहाँ पे उसका पूरा ये जो है मेथड मैंने यहाँ पे लिखा है, ये कॉन्क्रीट मेथड है। यहाँ पे डिक्लेरेशन भी है, ये डिक्लेरेशन पार्ट हो गया। ये जो है यहाँ पे लिखा मैंने, ये इम्प्लीमेंटेशन है। बट यहाँ पे अगर इसी सेम मेथड को यहाँ पे आप देखिए, ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, यहाँ पे सिर्फ डिक्लेरेशन होता है, इसकी बॉडी नहीं होती है। ठीक है, तो इसके चलते हमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। ओके, सो इन जावा we can have constructors in concrete class and abstract class, but in interface does not have any constructor। तो यहाँ पे देखिए जावा में we can have constructors in concrete class and abstract class। कंस्ट्रक्टर दोनों का हो सकता है गाइस, ठीक है। तो इसका भी कंस्ट्रक्टर हो सकता है, कोई वेरिएबल है इसके अंदर, अगर पैरामीटर कोई पास कर रहे हैं तो ठीक है। तो यहाँ पे मान लो एक ARG1 ऐसा कुछ हम पास कर रहे हैं, तो उसका एक ये जो कंस्ट्रक्टर है हो सकता है। और क्लास का जो है कंस्ट्रक्टर तो होना ही चाहिए, लेकिन इंटरफेस का कोई कंस्ट्रक्टर नहीं हो सकता, क्योंकि इंटरफेस में कोई भी इनिशियलाइजेशन नहीं होता है गाइस, ठीक है। तो उसके अंदर कोई वेरिएबल नहीं होता। अगर वेरिएबल है भी तो वो पब्लिक स्टैटिक फाइनल होता है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके चलते कंस्ट्रक्टर का होना सिर्फ दो ही चीज़ों में पॉसिबल है, एक होता है कॉन्क्रीट क्लास में और दूसरा होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास में, और उसके बाद इंटरफेस में कोई कंस्ट्रक्टर नहीं होता। तो इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे समराइज़ किया हुआ है गाइस एक टेबल की मदद से, जिससे कि आपको थोड़ा सा अच्छे से याद रखने में मदद हो सकती है। फाइन, तो कॉन्क्रीट क्लास क्या ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं? यस जी हाँ कर सकते हैं। और उसके बाद कॉन्क्रीट क्लास का कंस्ट्रक्टर होता है? यस होता है। कॉन्क्रीट क्लास का अब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है? नहीं। जो भी कॉन्क्रीट क्लास होता है उसमें सिर्फ कॉन्क्रीट मेथड्स ही होंगे, अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स नहीं हो सकते, ये हमने पढ़ा है। और उसके बाद कॉन्क्रीट क्लास में कॉन्क्रीट मेथड होंगे? जी हाँ। और उसके बाद कॉन्क्रीट क्लास में वेरिएबल्स हो सकते हैं, यस। अब देखिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं? नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते क्योंकि वो इनकम्प्लीट क्लास होता है। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर होता है? जी हाँ कंस्ट्रक्टर होता है। उसमें अगर कोई पैरामीटर पास कर रहे हैं तो वो कंस्ट्रक्टर ले सकता है, इन द सेंस लेता है। और उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा? जी हाँ एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है, ठीक है। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कॉन्क्रीट मेथड भी होता है? जी हाँ। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है बहुत ही दिलदार होता है, उसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी हो सकते हैं और कॉन्क्रीट मेथड भी हो सकते हैं, जो कि बॉयज़ की तरह होता है, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास को भी ले लिया, एब्स्ट्रैक्ट मेथड को ले लिया और कॉन्क्रीट मेथड को ले लिया। लेकिन कॉन्क्रीट क्लास जो है एक तरह से गर्ल्स की तरह होता है, जहाँ पे सिर्फ सेलेक्टिव लोग ही रह सकते हैं, इन द सेंस एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही रह सकता है। और उसके बाद वेरिएबल यस अलाउड है गाइस। और उसके बाद इंटरफेस पे आ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है एब्स्ट्रैक्ट। अब इंटरफेस में ऑब्जेक्ट क्रिएशन कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। कंस्ट्रक्टर होता है? नहीं हो सकता है। इंटरफेस में सिर्फ एक ही चीज़ अलाउड है, जो कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, जो कि इनकम्प्लीट मेथड्स होते हैं, सिर्फ उसी को हम लिख सकते हैं। अब कॉन्क्रीट मेथड्स नो, बट JDK 1.8 जो है सपोर्ट करता है
पहले नहीं था। जेडीके 1.8 जब आया वहाँ पे स्टैटिक डिफ़ॉल्ट कॉन्क्रीट मेथड्स को हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिर्फ जेडीके 1.8 में। ये कभी कभी इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो नॉर्मली हम अभी नहीं लिखते गाइस, लेकिन हम लिख सकते हैं सिर्फ जेडीके 1.8 में। और जो भी हम कॉन्क्रीट मेथड लिख रहे हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट स्टैटिक होगा। उसके बाद डिफ़ॉल्ट उसका जो है एक्सेस स्पेसिफायर होगा, और जस्ट देखिए स्टैटिक होना चाहिए और डिफ़ॉल्ट होना चाहिए, इन द सेंस उसका ऑब्जेक्ट तो क्रिएट नहीं कर सकते स्टैटिक है तो। और उसके बाद वेरिएबल, ये सभी हमने डिस्कस किया था, पब्लिक स्टैटिक एंड फाइनल होना चाहिए, वेरिएबल हम लिख सकते हैं उसमें। फाइन, सो दिस इज अ समरी अबाउट द लाइक वट एवर वी कैन डू इन द इंटरफेस। ठीक है, तो उसके बाद हम टाइप कास्टिंग डिस्कस करेंगे गाइस, लेकिन उससे पहले मैं थोड़े से और एग्जांपल्स आपको सॉल्व करवाना चाहूँगा जो कि इंटरफेस पे है। ठीक है, तो लेट मी जस्ट राइट अनदर वन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक बैंक का एग्जांपल ले लेते हैं गाइस, इससे थोड़ा सा अच्छा मतलब समझ में आ जाएगा। राइट, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक नई फाइल को बना लेता हूँ, इन द सेंस इसको मैं सेव कर लेता हूँ गाइस। यहाँ पे इसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ करूँगा। हाँ, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे ले लेते हैं। ओके, तो सेम इंटरफेस प्रोग्राम्स में हम जाएंगे और उसके बाद न्यू और उसके बाद क्लास। तो सेम इंटरफेस प्रोग्राम है और क्लास का नेम जहाँ पे मैं लेना चाहूँगा समथिंग लाइक दिस, बैंक पे है तो पहले आरबीआई को ले लेते हैं। ठीक है, तो आरबीआई को हमने ले लिया और उसके बाद फिनिश कर देता हूँ इसको। अब ये एम्प्लॉय का कोई काम नहीं है, इसको कट कर देता हूँ गाइस। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक क्या ले लिया, क्लास बना लिया। अब इस क्लास को मैं इंटरफेस में कन्वर्ट कर दूंगा। तो क्या करना होगा, क्लास निकाल दो, इंटरफेस लिख दो, इंटरफेस बन गया जिसका नाम है आरबीआई। और इसमें कुछ मेथड्स लिख देता हूँ गाइस। ठीक है, तो एक मेथड लिखता हूँ जिसका रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं है, इन द सेंस वाइड है, और इसका नाम डिपॉजिट है। और यहाँ पे जो अब्स्ट्रैक्ट मेथड है, तो देखिए गाइस अब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक होगा, और उसके बाद यहाँ पे कोई भी इम्प्लीमेंटेशन इसका नहीं होता है। फाइन, तो एक मैंने बना लिया आरबीआई का इंटरफेस। अब उसके बाद मैं दूसरा यहाँ पे बना लेता हूँ क्लास। ठीक है, तो क्लास बना लेता हूँ, सेम पैकेज में मुझे रहना चाहिए, तो पैकेज भी सेम रहेगा। और क्लास का नेम कुछ भी ले सकते हैं, कोई बैंक ले लेता हूँ, HDFC मान लो। ठीक है, तो HDFC बैंक मैंने ले लिया, इसको भी मैं फिनिश कर देता हूँ। अब देखिए पब्लिक क्लास, ठीक है, तो इसको भी मैं इंटरफेस करना चाहूँगा गाइस। ठीक है, तो पैकेज जो है सेम पैकेज में रहेगा, लेकिन इसका जो इंटरफेस मुझे करना है, तो क्या कर सकता हूँ, इसको हटा दो, इंटरफेस कर दो इसको। अब HDFC भी इंटरफेस है गाइस। अब इंटरफेस, ये जो आरबीआई इंटरफेस है, इसको मैं HDFC के इंटरफेस में इनहेरिट करना चाहता हूँ, तो सेम रहेगा। तो कौन सा कीवर्ड यूज़ हो सकता है यहाँ पे, एक्सटेंस यूज़ होगा, EXTENDS, कैपिटल में E होना चाहिए। ठीक है, तो यस, तो यहाँ पे क्या हुआ गाइस, एक्सटेंस, और उसके बाद कोई भी हम मुझे यहाँ पे दूसरा जो भी इनहेरिट करना चाहता हूँ उसको मुझे लिखना है। तो आरबीआई को मैं यहाँ पे इनहेरिट करना चाहता हूँ, तो आरबीआई को लिख दूंगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे मैं एक मेथड बना लेता हूँ जिसका नाम होगा विथड्रॉ मेथड, जो कि एक अब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा। ठीक है, तो उसके बाद और एक मैं यहाँ पे क्लास बनाता हूँ। अब एक क्लास कौन सा बनाऊंगा गाइस, लेट मी जस्ट क्रिएट वन क्लास। तो Ctrl+N, उसके बाद क्लास, और क्लास का नेम हम यहाँ पे दे देंगे अकाउंट होल्डर दे देते हैं, अकाउंट, और उसके बाद होल्डर, अकाउंट होल्डर मैंने एक क्लास बना लिया। और अकाउंट होल्डर क्लास जो है गाइस किसको इनहेरिट करेगा, मैं जो HDFC बैंक है, HDFC का इंटरफेस है, उसको इनहेरिट करना चाहता हूँ। अब ये क्लास है और ये इंटरफेस हो, तो क्लास और इंटरफेस मतलब डिफरेंट है। यहाँ पे इनहेरिट करना है तो मुझे इम्प्लीमेंट्स यूज़ करना होगा, इम्प्लीमेंट्स, और यहाँ पे मुझे लिखना होगा जिसको भी मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ, इन द सेंस इनहेरिट करना चाहता हूँ। तो HDFC को मैं यहाँ पे इनहेरिट करना चाहता हूँ, तो द टाइप ऑफ अकाउंट नंबर मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड इन द, ओके ठीक है। तो यहाँ पे एरर दिखाई देगा क्योंकि इसको मुझे अब अब्स्ट्रैक्ट बनाना होगा इस क्लास को, या फिर मुझे ओवरराइड करना होगा। अब देखिए गाइज, यहाँ पे देखिए अच्छे से, वाइड डिपॉजिट मेथड जो है आरबीआई में था, आरबीआई को मैंने HDFC में लिया,
तो यहाँ पे और एक मेथड मैंने लिखा विड्रॉ। तो HDFC में टोटल कितने मेथड्स होंगे गाइस? 2 होंगे। एक RBI से आया जिसका नाम है डिपॉजिट, और उसके बाद दूसरा जो कि खुद HDFC में लिखा विड्रॉ। तो इन दोनों को ही मुझे यहाँ पे ओवरराइड करना होगा, ठीक है। तो ओवरराइड कैसे कर सकता हूँ गाइस मैं? बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे मैं एक एनोटेशन लिखता हूँ, एट ओवरराइड लिख दूंगा, जिससे मुझे पता चलेगा कि यहाँ पे ओवरराइडिंग हो रही है। और उसके बाद मुझे इसका एक्सेस देना है पब्लिक, ठीक है। तो पब्लिक इसका एक्सेस होगा, रिटर्न टाइप एज इट इज़ वाइड, और पहले मैं डिपॉजिट को ही ओवरराइड करता हूँ, डिपॉजिट, और उसके बाद यहाँ पे ओपन क्लोज ब्रेसेस, राइट। तो पब्लिक वाइड डिपॉजिट मैंने लिख दिया, और उसके बाद ओपन क्लोज पैरेंथेसिस, और इसके बाद system.out.println कुछ मैसेज यहाँ पे पास करता हूँ, जस्ट लिख दूंगा डिपॉजिटिंग अमाउंट, ठीक है। तो एक मैंने मेथड को यहाँ पे ओवरराइड कर दिया, फाइन। तो एक मेथड को ओवरराइड करने के बाद दूसरा मेथड को भी हमें इसे यहाँ पे ओवरराइड करना होगा गाइस। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ओवरराइड, और उसके बाद इसका भी रिटर्न टाइप होगा वाइड, और इसका जो है नेम विड्रॉ है, विड्रॉ, और ओपन क्लोज पैरेंथेसिस, और यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं एक सिस आउट स्टेटमेंट, फाइन। तो सिस आउट में क्या लिखेंगे? जस्ट समथिंग लाइक दिस, एक मैसेज विड्रॉइंग अमाउंट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ओके। तो बेसिकली देखिए मैंने यहाँ पे 2 मेथड्स यहाँ पे लिखे थे, एक था विड्रॉ और उसके बाद यहाँ पे एक डिपॉजिट था। तो इन दोनों को मैं यहाँ पे ओवरराइड करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है इसको मुझे पब्लिक करना है, तो बेसिकली ये जो है पब्लिक ही है अभी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको पब्लिक कर दिया है, और यहाँ पे विड्रॉ मेथड हमें रेड मार्क दिखा रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे पब्लिक नहीं लिखा, तो इसको भी पब्लिक से हम अपेंड कर देते हैं। अब देखिए सब कुछ सही हो गया, यहाँ पे सब कुछ फाइन, ओके। तो उसके बाद यहाँ पे मैं मेन मेथड को लिख देता हूँ गाइस, इन द सेंस यहाँ पे हमें मेन लिखना है। तो मेन मेथड को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, ओके। उसके बाद एक अकाउंट होल्डर जो है इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, इन द सेंस लाइक दिस। तो इस अकाउंट होल्डर का मुझे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाना है। तो इस मेथड के अंदर Ctrl+V, और इसका नाम लेटर से OBJ दे देता हूँ। उसके बाद न्यू अकाउंट होल्डर ओपन क्लोज पैरेंथेसिस, और यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब इसके अंदर के OBJ के अंदर के पहले मेथड को यहाँ पे आपको दिखाई देंगे बहुत सारे मेथड्स। डिपॉजिट मेथड को कॉल करना चाहूँगा, और OBJ के अंदर के विड्रॉ मेथड को भी मैं यहाँ पे कॉल करना चाहूँगा। तो OBJ डॉट विथड्रॉ मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अब इतना लिखने के बाद अगर हम इसको रन करेंगे तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि डिपॉजिटिंग अमाउंट और उसके बाद विड्रॉइंग अमाउंट, जो भी हमने मेथड देखिए, मेथड मैंने इस इंटरफेस में लिखा डिपॉजिटिंग, यानी कि ये आधा है गाइस, यहाँ पे मुझे कुछ भी करना पता नहीं है। और HDFC में भी सेम किया है कि मैंने एक विड्रॉ मेथड लिख दिया और इसमें क्या कुछ करना है वो पता नहीं है, तो मैंने इन दोनों को इंटरफेस बना दिया। सो इन दो RBI इंटरफेस को मैंने HDFC में इनहेरिट किया, और HDFC को मैंने अकाउंट होल्डर क्लास में इनहेरिट कर दिया। तो इन दोनों ही मेथड्स को मैंने ओवरराइड कर दिया, और उसके बाद एक ऑब्जेक्ट जो कि अकाउंट होल्डर का ऑब्जेक्ट मैंने बना दिया, और वहाँ से जो भी मेथड्स थे उनको मैंने यहाँ पे कॉल किया हुआ है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंटरफेस गाइज। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, फाइन। तो यस, दैट्स इट गाइज, एंड फ्यू मोर एग्जाम्पल्स भी हम अगर यहाँ पे चाहे तो देख सकते हैं, लेकिन राइट सेम ही होगा गाइज। अगर मैं और भी एग्जाम्पल्स आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे और एक मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे और भी एक मैं लिख के दिखा देता हूँ गाइज, ठीक है। तो 2 प्रॉब्लम्स हो गए, अब हम तीसरा देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम क्लोज कर देते हैं फ़िलहाल के लिए, क्योंकि इसका कोई यहाँ पे यस गाइज, तो फाइन। यहाँ पे कितने, ओके, ऑलरेडी 40 मिनट्स हो चुके हैं गाइज, फाइन। दिस इज़ इनफ गाइज। ये जो इंटरफेस के बारे में हमने 2 एग्जांपल्स देखे, उसके बाद ढेर सारे एक्सप्लेनेशन हमने यहाँ पे सुना, दैट इज़ इनफ टू क्रैक एनी इंटरव्यू। और इसके बाद जब भी हम एडवांस्ड कॉन्सेप्ट में जाएंगे तो फिर से इस पर एग्जाम्पल्स और भी ज़्यादा देख लेंगे, फाइन। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो गाइज। और उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ टाइप कास्टिंग के बारे में, ठीक है। तो टाइप कास्टिंग बेसिकली एक वेरिएबल्स के साथ होता है, जो कि इंटीजर, उसके बाद जो भी
बूलियन वैल्यूज होते हैं उसके बीच में। लेकिन दूसरा टाइप कास्टिंग जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ब्यूटीफुल एग्जांपल्स की मदद से हम समझेंगे नेक्स्ट 22nd पार्ट में गाइज, ठीक है। तो टाइप कास्टिंग क्या होता है, डाउन कास्टिंग, अप कास्टिंग, दो टाइप्स आते हैं, प्रिमिटिव कास्टिंग और नॉन प्रिमिटिव कास्टिंग आता है। और यहाँ पे वाइडनिंग, नैरोइंग और उसके बाद अप कास्टिंग, डाउन कास्टिंग। ये जो वाइडनिंग नैरोइंग है प्रिमिटिव वेरिएबल्स के साथ होता है, और नॉन प्रिमिटिव वेरिएबल्स के साथ इन द सेंस क्लासेस के साथ जो भी होता है वो अप कास्टिंग और डाउन कास्टिंग कहलाता है। तो इसको इन डिटेल समझेंगे विद एग्जांपल्स इन द नेक्स्ट सेशन। सो दैट्स इट गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वन।